ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اج دے مناظرے کا موضوع اور اس کے شرائط جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. موضوع یہ ہے اہل سنت و جماعت کی طرف سے کہ وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنی جائز ہے، بدعت نہیں ہے. جبکہ دوسرے فریق کی طرف سے جواب دعویٰ یہ ہے کہ وسیلہ سے دعا کرنی بدعت ہے. مناظرے کا وقت 1 گھنٹہ. نمبر 1 دلائل قرآن و حدیث آثار صحابہ یہ اسناد صحیح سے ہوں گے. نمبر 2 جو محدثین مسلمانوں کے ہیں ان میں سے جس کو صحیح کہیں گے وہ حدیث صحیح تصور ہو. اصول جرح و تعدیل میں معتبر کتب کا لحاظ رکھا جائے گا. اسماء و رجال کے ائمہ کی جرح و تعدیل اصول کے مطابق قابل قبول ہوگی. جرح مبہم اور غیر مفسر مردود ہوگی. منصفین مناظرہ جناب شیخ محمد سرور اور شیخ محمد زاہد اپنے اتفاق سے مقرر کریں گے. فریقین میں سے مناظر کے علاوہ جو شخص بولے گا اسے کمرہ سے باہر نکال دیا جائے گا. پہلی اور آخری باری مدعی کی ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات مناظرہ، موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ اور دعویٰ دونوں طرف سے یہ پیش ہو چکا ہے. آج کا جو مناظرہ ہے یہ ہے کہ وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے یا بدعت ہے. میرا موقف یہ ہے کہ وسیلے کا کچھ بھی معنی ہو، وسیلے کے ساتھ دعا کرنی جو ہے یہ جائز ہے. انبیاء نے بھی کی ہے، اولیاء نے بھی کی ہے، صحابہ کرام نے بھی کی ہے. اللہ جل وعلا کریم نے اپنی لارحت کتاب میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ طلب کرو. یہ وسیلہ کیا ہے؟ آئیے محدثین مفسرین سے پوچھیے. اور چونکہ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ قبول ہوگی جو صحیح سند سے رویہ بیان کرے گا. تو میرے سامنے یہ جناب والی القول الجلیل ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. وہ اسلام میں سے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت کریمہ سے مراد یہی ہے کہ یہاں اللہ جل مجدہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کو بیعت کر کے اللہ کی راہ میں تقرب حاصل کرو، اللہ کے ولی کی بیعت کو اپنا وسیلہ بنا لو. اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ میرے سامنے میرے مخالفین کے بہت میرے محدث کی کتاب ہے. یہ دو مصنفین ہیں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل دہلوی. یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ آیت کریمہ نے اللہ تعالیٰ نے نجات کے راستے میں 4 چیزیں ایمان، تقویٰ اور وسیلہ کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر کیا ہے. تو یہاں جو وسیلہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اس میں وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں اور حقیقی نجات کے لیے مجاہدہ سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے. تو 2 محدثین کے میں نے اس آیت کریمہ سے یہ حوالے پیش کیے ہیں. اس آیت کریمہ نے توسل بنانا، وسیلہ بنانا، کسی کے ساتھ بیعت کر کے کسی ذات کو ساتھ پکڑ کے اللہ کی راہ میں تقرب حاصل کرنا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب والی کسی نہ کسی یعنی ضرورت کی کتاب سے بھی ہونا چاہیے تو جوہری نے سہا نے کہا ہے الوسیلہ ما یتقرب به الی الغیر، کہ وسیلہ وہ ہے کہ کسی غیر کے طرف اس کے قریب ہونے کے ساتھ کسی کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے. اس کی جمع ہے وسائل والتوسل والتوسل واحد. یہ سارے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی عمر مبارکہ میں صحابہ کو توسل کی یعنی طریقہ سکھایا ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے ایک اندھے صحابی نبی صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یعافینی، کہ محبوب کریم دعا کیجیے کہ مجھے اللہ عافیت دے دے، سے
अल्लाह के प्यारे महबूब ने वहीं शेता हो तो अगर तू चाहे तो मैं दुआ करता हूँ, वहीं शेता अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए, अगर तू वहीं शेता तबक्का भवा खैर, अगर तू चाहे तो सबर करे तो ये तेरे लिए बेहतर है। कहा फदू, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए। कहा खाना रहो तवद्दा वजह वधुआ या वजह को बिहार दुआ, कहा कि आने वाले मैं तुझे तरीका सिखा देता हूँ, कौन कौन मेरे पास दुआ कराने के लिए आएगा। ये तो एक ऐसा मसला है क़यामत तक आने वाले लोगों को इसकी जरूरत पेश आती रहेगी, तो कोई मेरे पास आ सकता है तो नहीं आ सकता, तो जो भी आए मैं तुझे तरीका सिखा देता हूँ। क्या कर, तू वजू कर, अच्छा वजू कर, और उसके बाद फिर ये दुआ मांग, क्या अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदन नबिय्युर रहमह या मुहम्मद इन्नी जो तुम्हें तुम्हारा रसूल दे उससे ले लो और जिससे मना करे उससे मना हो जाओ। मेरा भाई खड़ा हुआ है और उससे दलाइल देने शुरू किए हैं। उनको इसका इल्म होना चाहिए कि दावा ये है कि वसीले से दुआ करना जायज है। कुरान मजीद की आयत पढ़ी है वक्त इलैहि वसीला। कुरान की इस आयत में किसी जगह भी नहीं है कि वसीले से दुआ करना जायज है, और कुरान की इस आयत का ये माना है ही नहीं। लेखक का ये तय हो जाता है कि वसीला किसे कहते हैं। कुरान की आयत जब पढ़ी है उसकी तफसीर सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन से करनी थी, लुगत की किताब से करनी थी। एक भी तौफीक नहीं हुई कि किसी एक किताब को उठाकर वो ये साबित करें कि कुरान मजीद की इस आयत का ये माना बनता। फिर उन्होंने कहा, झूठ बोला इस बात पर कि अंबिया ने वसीला मांगा, वसीले से दुआ की है, औलिया ने की है, सहाबा ने की है। ये बात झूठ है, किसी सही सनद से साबित नहीं। साबित करते तो हम मांगा इनाम देंगे। इस्लाम में से शाह वलीउल्लाह को दिया है, सहाबा भी भूल गए, ताबईन भी भूल गए, तबा ताबईन, मुफस्सिरीन, आइम्मा दीन सारे भूल गए, और अपने इस्लाम में से अब शाह वलीउल्लाह साहब को तस्लीम कर लिया है और जमीन उनकी उठाकर तस्लीम कर रहे हैं। सिराते मुस्तकीम बयान कर रहे हैं शाह इस्माइल शहीद की, वो शायद तफसीर की किताब है। कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर मौजूद है। फिर एक हदीस पेश की है उन्होंने, और एक लुगत की किताब से पेश करने की कोशिश की है। मा यतक़र्रबु बिही इलल ग़ैर, इसमें कहीं भी ये इसका तर्जुमा साबित कर दे, मैं अभी अपनी शिकस्त लिख के दे दूंगा कि मा यतक़र्रबु बिही इलल ग़ैर का माना ये है कि वसीले से दुआ करना जायज है। इसका ये माना बनता है। मौलाना साहब कम अज कम अपने घर की किताब उठाकर तफसीर की देख लेते, ये तफसीर नईमी है। तफसीर नईमी वाली ने कहा है कि वसीले के लुगत में बहुत मानी है, तो मोहब्बत, हाजत, जन्नत का खास मकाम, ये वसीले के मानी बरेलवी मौलवी ने बयान किए। हम इसको साबित करते हैं कि ये बिदअत क्यों है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने नबी की जिंदगी में वसीले से कभी दुआ नहीं की। मौलवी साहब का हक ये बनता था कि कुरान की वो आयत पढ़ते जिसमें वसीले से दुआ करने को जायज करार दिया है, या नबी की वो हदीस पढ़ते। ये देखिए मेरे सामने, ये है लिसानुल अरब लुगत की किताब, इसमें वो साबित किया है उसने कि वसीले का माना दर्जा है, कुर्बत है। इसी तरीके से उन्होंने साबित किया है वसीला सरका चोरी को भी कहते हैं। ये लुगत की किताब है। आइए अब तफसीर की किताब में आपको दिखलाता हूँ। तफसीर की किताब में भी उन्होंने यही बात जिक्र की है कि वसीले का माना मुख्तलिफ है। जन्नत भी वसीले को कहते हैं, इसी तरीके से अपने अमल के जरिए कुर्बत भी वसीले को कहते हैं, और भी बहुत से माने बयान किए हैं। कहीं किसी मुफस्सिर ने ये माना बयान नहीं किया है कि वसीले का माना ये बनता है। और मैं आपको अजीब बात बताता हूँ कि जिस बात पर इत्तिफाक है और उस पर इजमा है, तक़र्रुबु इलैहि बिताअतिही वल अमलु बिमा यरज़ीही, ये है तक़र्रुब अमल के जरिए, इताअत के जरिए। वहाज़ल्लज़ी क़ालहु हाउलाइल आइम्मतु, और ये बात इन आइम्मा ने की है, ला खिलाफ़ बैन मुफ़स्सिरीन फ़ीह, और इसमें इन मुफ़स्सिरीन के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं कि वसीला सिर्फ तक़र्रुब को कहते हैं, अमल के जरिए किताब को कहते हैं। इस पर इजमा है मुफ़स्सिरीन का कि वसीले का माना ही ये है। अगर इन्हें जरूरत है किसी एक किताब से, किसी एक मुफ़स्सिर से ये साबित करके दिखाएं कि वसीले का माना ये है कि वसीले से दुआ करनी चाहिए। जो हदीस मेरे भाई ने पढ़ी है उसमें भी वसीले से दुआ करने का कोई तस्करा नहीं है। ये अल्फाज उन्हें उस हदीस में से निकाल दे कि अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को ये हुक्म दिया हो कि तू वज़ू करो और नमाज पढ़ और मेरे वसीले से दुआ मांग कि याददार अल्लाह के रसूल के तुफैल हमारा ये काम कर दे, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, इनके मकसद को कबूल
آئیے ہم کس لیے اس کو بدعت کہتے ہیں؟ نبی کے زمانے میں کسی ایک صحابی نے بھی وسیلے سے دعا نہیں کی. ہم اس کو اس لیے بدعت کہتے ہیں کہ ائمہ دین کا میں اس لیے تذکرہ کرنا چاہتا تھا اسلام کا، صحابہ اور تابعین کا، کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ترجمہ دے سکتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ رب العالمین. کہ یہ تو ہو گیا کہ توسل کے وسیلے کے معنی بہت ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ بھی سمجھا ہے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اس وسیلے سے میں معنی کیا مراد لے رہا ہوں. میں نے کہا، آپ نے کہا تھا اسلاف میں سے آپ نے کسی کو بھی متعین نہیں کیا تھا. یا کہیں شاہ ولی اللہ اسلام میں سے نہیں ہے، یا کہیں شاہ اسماعیل اسلام میں سے نہیں ہے، اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وجادوا بحاجت دعا. یہ دعا مان، کیا دعا مان؟ اے اللہ مجھے بخش دے، یہ میں کچھ سے سوال کرتا ہوں، تیری توجہ کرتا ہوں، نہیں کا تیری تو توجہ کرتا ہوں جو نبی کا محمد، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کیا معنی ہوتا ہے بحق کا، اور کیا معنی ہوتا ہے وسیلے کا. اور پھر دیکھیں الحمدللہ کیا مانگا، کیا فی حاجتی حاجی، میری اس حاجت کو پورا کر دے جو میں حاجت چاہتا ہوں. جی انشاءاللہ کتابیں دے دیں گے جو بھی آپ چاہیں. اور آگے دیکھیں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ یا محمد ہو، آگے یہ پکارنا ہے انی توجہ کو دیکھو اللہ، میں آپ کی ذات کے ساتھ اللہ جل مجد کریم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں. باری تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے، صدقے سے، آپ کی ذات سے مجھے معاف کر دینا، میری حاجت پوری کر دینا. اور وسیلہ تو اللہ کے اسماء الحسنی سے بھی، وسیلہ تو ہمارے صالحہ سے بھی، جو تو مان گئے نا کہ ہمارے صالحہ سے بھی وسیلہ ہوتا ہے. ابھی سے غیر مشہور ہے کہ باری تعالیٰ ہم نے یہ کام کیے، اگر جو تو مان گئے نا کہ ہمارے صالحہ سے بھی وسیلہ ہوتا ہے. ابھی سے غیر مشہور ہے کہ باری تعالیٰ ہم نے یہ کام کیے، اگر تیری بارگاہ میں پسند آئے تو ہمیں تو معاف کر دے. اور اللہ کے پیارے محبوب نے واقعہ بیان کیا، اگر ہمارے صالحہ سے وسیلہ تقرر ہو سکتا ہے تو جو ذات ہے، جو اثر ہے، وہ ہمارا تو فرع ہے، اس ذات کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ کوئی ایک صحیح سند سے یہ ثابت نہیں کر سکتے. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سند جو ہے ابن خزانہ نے 225 جلد نمبر 2 میں، امام احمد نے صفحہ نمبر 136 جلد نمبر 4 میں، امام نسائی نے عمل جواب نمبر لالا نے صفحہ 417 میں، ابن ماجہ نے صفحہ 441 جلد نمبر 1 میں، بخاری نے تاریخ کبیر میں، طبرانی نے موجم کبیر صفحہ نمبر 31 جلد نمبر 9 میں، اور اسی طریقے سے کتاب الدعا میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1299 میں، اور حاکم نے مستق میں صفحہ نمبر 313 اور کہا اس کو امام حاکم نے کہ یہ صحیح روایت ہے، یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے. اسی طریقے سے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تجھے کوئی حاجت ہو تو یہی دعا مانگ لیا کر، یہ نہیں آئے گی بعد میں بھی یہ دعا تو مانگا کر جب بھی، یعنی اس میں کوئی حیات کی بھی قائد نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا حاجت سفر مصر والے کا، اگر تجھے ایسی حاجت پیش آئے تو ایسے ہی کام کرتے جانا، یہ دعا مانتے جانا. یہ صحیح صنعت سے الحمدللہ ہم نے روایت پیش کر دی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسری حدیث سنیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مثال مبارکہ ہو گیا. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گا جنازہ پڑھانے کے لیے، جنازہ پڑھایا اور کیا کہا اللہ جو ہی وائی ہوئی تو وہ حی اللہ جو ایک کر لے ہوں فاطمہ بنت اسد ولت نہا وہ حج حجت ہے وہ مجھ سے علیہ مدخرا ہے کہ حج کے نبی کا وہ لمبیا اللہ دینا من قبلی فإن کا ہم راہی. باری تعالیٰ ایک تو میرے باری تعالیٰ دیتے ہیں کتاب، ایک تو میرے صدقے پہلے نبیوں کے صدقے اس کی بخشش فرما دے. ایک تو روایت کس نے کیا امام موجم کبیر میں، امام طبرانی نے موجم کبیر صفحہ نمبر 570 اور جلد نمبر 26 اور موجم ہاؤس میں صفحہ نمبر 111 جلد نمبر 1 میں، ابو نعیم نے فلحیہ صفحہ نمبر 121 جلد نمبر 3 میں. سند اس کی سن لیں گی حدیث کی جلد نمبر 36. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہاں جی سنت سن لیں گی. سب اپنا احمد بن حماد بن رضا سنار روح بن سنات سفیان قوری اناس بن الاحول انس بن مالک. نہیں جار یہ نہیں ہو سکتا. کیوں آپ لے رہے نہیں اپنی کتاب نہیں
وسیلہ وہ اس مسئلے میں نہیں تھی، اس لیے مولوی صاحب نے کسی مفسر سے کسی تفسیر سے یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ یہ بات واقعی وسیلے سے دعا مانگنے کے بارے میں ہے، اس لیے قرآن مجید کی جو آیت پیش کی گئی تھی وہ غلط۔ مولوی صاحب نے اسلام کے بارے میں اور بات کی ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کو ہم اسلام میں تسلیم کرتے ہیں۔ جناب میں نے پہلے کہا تھا اور یہ بات ریکارڈ ہے کہ اسلام میں سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ دین، یہ بات میں نے ریکارڈ کروائی تھی، شاید آپ نے نہیں سن سکی یہ بات تو آپ دوبارہ سن لیں۔ شاہ ولی اللہ کو اٹھا لینا، صراط مستقیم والے کو اٹھا لینا، اس کو اسلام میں شمار نہیں کیا جاتا، یہ متاثرین ہے۔ قول الجمیل اور صراط مستقیم کو اٹھانا اور اس سے دلیل دینا آپ کا یہ غلط ہے۔ معنی یہ تسلیم کر دیا کہ توسل کے معنی بہت سے ہیں، ہم بھی یہی کہتے تھے کہ متعین کریں، اور اس میں سے توسل کا یہ معنی کہ وسیلے سے دعا کرنا ایک معنی بھی بیان نہیں کیا۔ میرا ان کو یہ چیلنج تھا کہ توسل کا معنی یہ ہے کہ وسیلے سے کسی کے بارے میں کہا جائے اللہ کے نبی اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کے بغیر میرا یہ کام کر دے، توسل کا یہ معنی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ روایت جو انہوں نے پیش کی حضرت عثمان کی، کیا اسی طریقے سے دعا کی جاتی ہے جو حدیث میں طریقہ ہے؟ جہاں وضو کرو، جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر کیا کہو؟ انہوں نے الفاظ لکھوائے ہیں، میں آپ کی ذات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، میں نبی کی ذات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں۔ کیا اسی طریقے سے وسیلے کی دعا مانگی جاتی ہے کہ وضو کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں؟ بلکہ کہا جاتا ہے یہ کہ اللہ اپنے حبیب کے بغیر اپنے حبیب کے صدقے ہمارا یہ کام کر دے۔ اس لیے انہوں نے جتنے بھی یہ دلائل دیے ہیں یہ تمام کے تمام دلائل غلط ہیں، صحیح نہیں۔ اب وہ کتاب دی جائے جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، ہاں جو یہ کتاب میں رہے تھے نا، اس میں لفظ تھا کہ حق کے نبی کا، اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت پر بحث نہیں کہ وہ خلاف بحث ہے، اس میں اس مسئلے کا کوئی ذکر نہیں، حدیث اس میں اس مسئلے کا کوئی ذکر نہیں۔ مولوی صاحب نے جو اب پڑھنے کی کوشش کی ہے طبرانی سے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ حدیث مر گھڑت موضوع ہے طبرانی، میرا یہ چیلنج ہے۔ مولوی صاحب اس کی ضرورت پڑھیں، میں بتاؤں گا۔ کتاب دینا اور لینا یہ طے ہوا تھا کہ دیتے ہیں ابھی کتاب، میں نے جب مانگی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کتاب ہمیں دیں، حدیث پیش کر لیں، کتاب ہمیں دیں۔ موضوع کے لیے صرف یہی حدیث ہے صحیح ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے، ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو گیا کہ وسیلے سے دعا کرنا کہ حق کے نبی کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے، آپ اس حدیث کو صحیح ثابت کر دیں، آپ کا مطلب قبول، آپ کو منہ مانگا انعام اپنی شکست لکھ کر دے کر جاؤں گا، آپ کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گا دوبارہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس حدیث کو صحیح ثابت کیا جائے اور پھر وہ کتاب ہمیں دی جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ نے جو کتاب پڑھی ہے کیا واقعی اس میں یہ الفاظ ہے، اس میں یہ سند ہے، آپ کو پڑھیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے کہ کتاب میں یہ بات ہے۔ اس لیے ہم اب بھی یہی کہتے ہیں وسیلے سے دعا کرنا بدعت ہے، اس لیے بدعت ہے قرآن کی کسی آیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے، صحابہ کے کسی عمل سے ثابت ہی نہیں کہ صحابی نے اس طریقے سے دعا کی ہو، قرآن نے اس طریقے کا تذکرہ کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جو یہ عمل کرتا ہے جو ہماری شریعت میں نہیں، فہو رد، وہ مقبول ہے۔ اور نحمدہ صلی اللہ رسول کریم، آج تک تو ہم یہی سنتے آئے تھے حضرت شاہ محدث میں، آج کہاں وہ محدث ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جب گھر کی بات آئے تو جس کو چاہو محدث بنا دو، ان کو تو بچہ محدث کہتا ہے، محدث دے رہی۔ اور پھر تفسیر کیا، تفسیر کے اللہ کے نبی نے لکھا کہ جو آج کی تفسیر کی کتاب سے ہوگا وہ لینا، کسی اور کتاب سے نہ لینا۔ اور پھر اس کی صنعت پر تو گاڑی کیا پہلے وضو کیا جاتا ہے، پہلے بھائی کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی، جو میرے محبوب نے طریقہ پڑھایا طریقہ وہی صحیح ہے۔ آج یہ اگر کو وضو کرے، آج یہ اگر کو کہے محبوب کریم کے صدقے اے پیارے حقا تجھے لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں تاکہ اللہ میری حاجت پوری کر دے، تو اللہ نے حاجت پوری کر دی، اس کی صنعت پر ذرا نہیں کی۔ اور میں کہتا ہوں کہتے تھے پیر کے چلو بنا تو بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے دوسری حدیث پیش کی یہ موضوع ہے۔ اب میں کتاب دینے کا حقدار تو نہیں تھا، میں کتاب دیتا ہوں، یہ تو آج موضوع ثابت کریں، اگر اس حدیث کا موضوع ثابت میرا مطابق کر دے تو میں ابھی مناظرے سے اپنی شکست لے کر دینے کو تیار ہوں۔ ابھی فیصلہ لو بھائی، مناظرہ ختم ہو گیا، اس کو موضوع ثابت کرنا ہے آج۔ اگر ثابت ہو گئی مناظرہ ہم ہار گئے، اگر یہ ثابت موضوع نہ ہوئی تو پھر مناظرہ جو ہار گئے، انہوں نے کہہ دیا ہے۔ میں اپنا وقت بھی چھوڑتا ہوں، یہ لو مولانا صاحب، یہ سند ہے، اس کو پڑھو
صاحب کو محدث قرار دیا گیا اس کے لیے جو آپ نے پوائنٹ دیا یہ جو پوائنٹ اٹھائیں گے نہ ذکر کرو ختم ہو گیا ختم ہو گئے آپ نے حاجی صاحب یہ 4 جو چیزیں انہوں نے پوائنٹ اٹھائے اس کا جواب دینے کے بعد میں یہ دوں اس کا میں دے دوں پھر اس کے بعد اس کا وقت ملے گا اس کا آپ نے کہا موضوع ہے اگر موضوع ہے تو اب تو غیر خارج چھوڑ دیجیے نا اب تو مولانا غیر کی بات ہی نہیں ہے صرف ایک حدیث موضوع بن گئی ہے اگر وہ موضوع بن گھر تو ثابت ہو جائے مناظرہ آپ جی کو اور اگر نہ ثابت ہو تو مناظرہ ہم جی کو اب چھوڑ دیں سارے غیر کو آج ایک موضوع ایک حدیث کو موضوع ثابت کریں زندہ ہونے کی صورت میں توسل جائز ہے. یہ تو کہا کہ اس وقت زندہ
करना। मैंने ये पहले भी अल्फाज पेश किए थे। और जहाँ तक दोस्तों ये कहने का ताल्लुक है, अब मौजू कहा था ना, अब और क्यों इधर उधर गए, मैंने कहा था नाराजा खत्म कर दे, अभी खत्म हुआ चाहता था नाराजा, लेकिन नहीं कर सकते। मैं ये देख सकता हूँ, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कैसे कह दिया मौजू साबित कर देना, जहाँ मुदल्लिस की है तो रात आने के साथ तो मौजू होती है, क्या किसी पर जरा थोड़ी बहुत साबित हो जाए तो मौजू हो जाती है। जरा जो साथ बयान करें मुदल्लिस की रवायत मौजू नहीं। और फिर ये दर्जा के मुदल्लिस है इमाम सुफियान थौरी रहमतुल्लाह तआला, दुनिया के इमाम बुखारी ने कितनी सही में से रवायत इमाम सुफियान थौरी से ली हुई है। क्या उनकी हर सनद उनके हर अंश से बात मरदूद होगी। कहा इमाम ज़ाहरी तदलीस हो हादा लाज फिर लोग खाए मर्जी याद ही लाजत जिरहन फिए लन्ना काना यसनदुल हदीस वयसलहु वयसरु बिला फाद वयसरु बिला फाद बनाते वलाकिन लाज दल्ले बहाने फिक्र से इमाम ज़ाहरी ने कहा कि इमाम सुफियान थौरी पर तदलीस की जगह हो नहीं सकती। ये किताब इमाम ज़ाहरी की किताब से ये किताब उम्मत जरह तदलीस कत्ता तकीफ़ीन जो यादे वाली उम्मत जरह तदलीस की किताब है। और उसमें इमाम ने ताकि रहमतुल्लाह तआला सुन लो, इमाम ताकि ने कहा फरमाया, कहेंगे ये इमाम ताकि ने कहा फरमाया, इमाम ताकि ने एलान में सभा नंबर 309 पेज नंबर 7 में ये बात इरशाद फरमाई है सुफियान थौरी पर। और पहले यही बयान करे क्या सुफियान थौरी आने से रवायत करे तो क्या वो रवायत मौजूद है, कोई और रवायत नहीं पेश करना, कोई दलील नहीं देनी, बस उसको मौजूद साबित कर दे, मैं लिख दूंगा मुनाज़ा हार गया। और जहाँ तक रोह बिन सलाह का मामला है, कहा कि रोह बिन सलाह की जनाबे वाली तुम तो ठीक साबित करो तो सुन लो। रोह बिन सलाह को अगर के किसी भी गरीबी कहा, लेकिन जरा मुफस्सर नहीं है, ये लिख के दिया गया है कि जरा मुफस्सर होगी, जरा गैर मुबहम कबूल नहीं होगी। एक तो तब जाकर इब्न हिब्बान किससे कहा थे वकाल अल हाकिम सिकातुन मामून, ये रावी सिका है, ये रावी मामून है। और अगर किसी ने इस पर जरा की हुई होगी तो वो जरा जो है वो नाके जरा है, मुफस्सर नहीं है, पेश करें मुफस्सर जरा अभी मैं उसको सही साबित करता हूँ, ये रवायत सही है और इसका मौजूद साबित करना अब आपकी ड्यूटी है। ना तो और दलील हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बुलाए हैं, ना तो और दलील देता हूँ, ना तो सुनता हूँ, इस हदीस से तुम साबित कर दो कि ये मौजूद है, हम मुनाज़ा हारे तुम मुनाज़ा जीते, मौलाना लिख के देना पड़ेगा कि वाक़अतन ये रवायत मौजूद नहीं है। आज आप सुन्नियत का पता गले में तोड़ कर जाएंगे यहाँ से, अगर जबान का विश्वास रखते हैं तो। अगर जबान है तो आज इस मौजू पे गुफ्तगू हो जाएगी कि कैसे तुम मुनाज़ा सुन के वादी हो गए थे, आज पता चलेगा कि मैं मुनाज़ा सुन के वादी हो गया था। मुनाज़े ऐसे होते हैं क्या उससे मौजूद साबित, अगर उसका मौजूद साबित कर दो तो हम मुनाज़ा हार जाएंगे। इसी के लिए जो मुहद्दिसीन ने उसूल बयान किए हैं उन असूलों का किसी हदीस को यानी बयान करो और ये कह देना बारे आते ने शायद हमारा मन कह दो वाले या मुतहम्मिदन समझो तो बड़ो न कदम ना, जिसने मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। क्या तुम समझते हो सहाबा इकराम माज़अल्लाह अंसुल माले या उनके जो दूसरे वाले भाई हैं सुफियान थौरी या तो नकल करने वाले इमाम सिद्धानी उसने मौजूद नहीं कहा और ये हराम है, तो अगर रवायत मौजूद नकल करे और अगर लिखे ना ये मौजूद है, जो हराम है लिखना पड़ेगा उसको कि ये मौजूद रवायत है, उसने उसको सही करार दिया तो हम इसको मौजूद करार दे रहे हैं। हमने खूब दबा के देख लिया, शेर आपने पढ़ा था उसका जवाब आज है। हजरत साहब एक तकरीर कर रहे थे, एक मौलाना कहते हैं मौलाना गालिब ने पानी डराने का खूब फरमाया है, फकीराना आए पता कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। किताब इकबाल की और लिखने वाला गालिब और शेर नहीं तकरीर का कहते हैं ने शेर आराम उल्लाह में बयान फरमाया है। शेर आराम उल्लाह मौलाना किताब किसकी है, जैसे पढ़कर जरा आ जाते। शेर कहते हैं कि तबरानी ने कहा कि उसके आगे मौजू नहीं लिखा, हराम है कि वो लिखना मौजू जरूरी था। मेरी PhD है किताब तबरानी पर, मौलाना जरा सुने, मेरी PhD है किताब तबरानी पर। ये बात अब ये मुनाज़ा हो रहा है, इसके बाद इस बात पर मुनाज़ा लिख ले
अमल होंगे सारे, उसमें तवस्सुल से दुआ मांगना कहाँ से शामिल कर लोगे? इसी तरीके से कहते हैं कि ये रवायत आपने देखा, हमारा नबी जिंदा है, अबू बकर सिद्दीक सहाबा का इजमा, आप फरमाते हैं मन कान मिनकुम मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा की मौजूदगी में फरमाया कि जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, फइन्ना मुहम्मदन कद मात, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। फिर कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। और वे कहते हैं शरायत में मौलाना लिख लिया है हमने, कुरान और सही हदीस से दलाइल दिए जाएंगे। आपने सुफियान सौरी को पेश किया, ला अन्नहु काना युबल्लिगु अनिल दुआफा, किताब नहीं है तो हम दे देते हैं, वो दुआफा पे तबलीग किया करता था। और फिर जो आपने उससे सकावत जिक्र की है, रोटी होगा किताब मुझे दे दे, कहते हैं इनके बारे में हुक्म, हम सुने तबलीग का हुक्म, मुकदमा इब्न सलाह असूल हदीस की किताब, उसमें उन्होंने लिखा है कि तबलीग का हुक्म क्या है। कहते हैं कि जब तक उसकी सराहत न हो जाए, सिला न हो जाए, उसकी रवायत पर कबूल ही नहीं किया जाएगा। सुफियान सौरी की रवायत काबिल कबूल असूल हदीस के मुताबिक नहीं है, वो मुसन्निफ है और दुआफा से करता है। और खुद मान लिया कि वो है ना, जो हमने पेश किया तबरानी वाला, वो जरा ज़ईफ़ भी है, उसको सिक्का भी कहा है, वो किताब से हमें दे दे, हम उसमें से पढ़ कर सुना दे कि कहाँ सिक्का है, कहाँ ज़ईफ़ है, वो किताब से जरा वाला लगाने की बात कर रही जनाब, आपको किताब दे दें, मुझे किताब मेरा पहन के और तो किताब नहीं है, किताब दे दें, किताब दे दें। ये जो आपने पढ़ी है रोग के बारे में जो किसी का था, और देखो जो किताब ने पेशी है वो तकूर की किताब है, इमाम साहब की किताब नहीं। किताब 2 नंबर, 2 नंबर किताब 2 नंबर, असल किताब से हवाला पेश करो, फिर बात बनती है। वो किताब से जहाँ से आपने इसकी किताब बयान की थी मौलाना, वो किताब से जरा मुफस्सल किताब से होगा, किताब से जब तक मैं किताब दे पर बात होगी, किताब दे कोई बात नहीं, जो गरीब आप हमसे माने किताब, ये मुकदमा इसने सुना हमने जो किया है, ये जुबानी आती है, फिर ये पेश न करते हैं, तदरीस का पेश न करते, तो दे किताब जो आपने कहा है उसको सिक्का कहा, दे किताब तो मैंने हमारा जो हमारा किताब है ना, मैं कहता हूँ आपने छुपाया क्यों दो किताब से छुपाई है इन्होंने, क्यों दो किताब कुरान मजीद में आता है उतना समाज के करीब न जाओ। अरे आदमी यही बात पढ़े, वो अगली न पढ़े, पिछली न पढ़े, उसको क्या कहेंगे आप? उन्होंने ने वो बात छुपाई जो उसमें लिखी हुई थी, मैं इनके घर की किताब निकाल कर दिखाता हूँ जो इन्होंने पढ़ी है, उस पर लिखा है कि ये सही है, और ये देखें इसमें लिखा है कि सही समझ कर पेश किया जाएगा। बराबर मेरा चैलेंज अभी बरकरार है, एक हदीस सही समझ के साथ पेश कर दे, मुंह मांगा इनाम देगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौजू पर लफ्ज़ नहीं आ रहा जुबान से, मैंने कहा था कि खत्म कर दे, मौजू प्यार करे, आपने वो तो कह दिया कि नहीं, वो बयान तो बहुत अफसोस से देखता है, मगर तो मैं जो किताब दुआ बना दो करने आया है किताब, मैं दूँ आपको, आप साबित करें कि रोज किसने और किन अल्फाज से देखता है, रोज फिक्र रही है। इमाम सुफियान सौरी इमाम हदीस है, और उनकी बात मैंने कहा था बुखारी में कितनी रवायतें हैं, ना क़यामत तक मौलवी साहब तुम जानते हो, ना तुम प्यार करोगे कितनी रवायतें हैं, और वो उनके साथ है। यहाँ बुखारी ने सारी की सारी मौजूद रवायत इकट्ठी कर दी है, ये आपका इस्लाम है मुहद्दिसीन पर। और मैं अब भी कहता हूँ मौलाना, मुआवजा खत्म करो, एक तो मौजूद साबित करो, मैं अभी दूसरे दलाल नहीं देता, मेरा एक ही चैलेंज है, एक हदीस को मौजूद साबित कर दो, तो मैं अब भी लिख के देने को तैयार हूँ। हम मुआवजा हार गए हैं, लेकिन क़यामत आ सकती है, कोई दुनिया का वसी जो है वो हदीस को कोई साबित नहीं कर सकता। और फिर आपने जी वसीले का लफ्ज़ क्या है, भाई वसीला क्या होता है? वसीला वही होता है बेहद फलां की बात के सच्चे, फलां के चेहरे के सच्चे, मैं महबूब मुझा मोहम्मद सनद बात किया नहीं किया, कहा जिंदगी में है, मैंने कहा बाद में भी है, नहीं उसका जवाब दिया। मैं कहता हूँ छोड़ो, मुझे जवाबों की उनकी जरूरत नहीं है। रह सलाह सुबहान सौरी की भीड़ पर मौजूद साबित करो जो तुमने कहा, जरूर साबित करो जो तुमने कहा, मैं अब भी लेक्चर देने के लिए तैयार हूँ कि महाराजा हम हारे, लेकिन हर जबान पर कायम रहे कि ये हदीस जिन्होंने सही कही है उनको जा तो कहें कि महादुल्ला नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें को झूठ बोलने वाले हैं, नहीं तो आप ये बयान करें।
सफियान सौरी देखे कितना बड़ा मुहद्दिस क्या उसको कह दिया है। आज शाह वली अल्लाह भी मुहद्दिस नहीं रहे, आज वो बाद तो वजूद के काबिल हो गया, आज शाह इस्माइल देवी भी इमाम नहीं रहे, आज वो भी गए, आज सफियान सौरी भी चले गए। सफियान सौरी कहाँ है? और शेख अल इस्लाम है, इमाम अल हुफ़ाज़, सैयद अल उलमा वल आमिलीन फी ज़माने ही सफियान बिन सईद बिन मसऊद अबू अब्दुल्लाह अल-कुफ़ी, ऐसा मुहद्दिस जिसको सारी की सारी दुनिया इमाम बुखारी के फातवा में थे, इमाम बुखारी उसके खोजा थी, इमाम बुखारी के साथ उसके खोजा थी, इमाम बुखारी नाम में तो हदफ से नाम में आज एक मौलवी जल्दी से अगर ये कह दे तो मादुल्लाह हदीस गड़ी हुई है, और ये तो जहन्नमी कहना है ना किसी को, हदीस मौजू कह देना, ये तो हदीस गरीब कह देना, ये तो दूसरे लफ्जों में कतन जहन्नमी कह देना है कि जिसको मौलवी साहब जहन्नमियात बनाओगे। छोड़ो सब चीजों को कि फलानी हुआ फलानी हुआ, आपने आज थोड़ी एक साल जिंदगी में पहली मरतबा सही बात कर दी कि अगर ये मौजू साबित ना करूं, अगर घड़ी में साबित ना करूं तो मैं सुन्नी हो जाऊंगा, वो तो आप हो नहीं सकते। क्यों कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान फरमाया था यखून मिन दीन कमा यखून सामन मिन दुनिया, दिन से निकल जाएंगे जैसे दिन निकल जाता है, एक वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन दुनिया को पता चल जाएगा कि ये सही हदीसों को मौजू कैसे कह देते हैं। और सिर्फ ये कह देना कि हम से रात की तो मौजू होगी, चलो ज्ञान करो किसी एक मकसद से कि हम से रात करो मौजू हो जाएगी। और रौ बिन सलाह को किसने लिखा है, उसके अल्फाज क्या है, मैं किताब मैं दूँ क्यों 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 वो अपनी किताब पढ़ के मुझे बताएं कहाँ छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा, मैंने पढ़ा है कि उसको हाकिम ने सिका कहा, महमूद कहा, उसको इमाम इब्न हिब्बान ने सिका कहा। आप ध्यान करें कि उसने उसको गरीब करार दिया है, और उसके अल्फाज क्या है, कैसे दिया जरा मुफस्सल मोहब्बत होगी, जरा मुबहम जो है वो मोहब्बत नहीं होगी। फिर मेरा वही सवाल है, इसी हदीस को मौजूद साबित करना होगा। आज आपको इसी हदीस को मौजूद साबित करना होगा, नहीं करेंगे तो मैं मुतालबा करता हूँ सबसे, एक कमरे से कब निकलेंगे, कब ये लिख के देंगे कि मैं अपना मतलब तब्दील करता हूँ, मैं मनाजे हारता हूँ, नहीं तो उसको जब मौजूद करिए हदीस एक तो साबित करना पड़ेगा, और उसके असूल जो मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं वो असूल भी बयान करने होंगे। किन असूलों के साथ एक हदीस जो है वो मौजूद होती है, उसके रावी को क्या कहा जाए, कितने रावी हो, हाँ मैं अल्फाज बयान नहीं करता, क्यों कि मुझे पता है कि कितना पानी है उधर, कितने पानी में है, पता चलेगा ना आज कि मुहद्दिसीन किसको मौजूद कहते हैं, उसके दलाइल क्या है। ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सही है, सही है, सही है, ये मौजूद नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज ये साबित करना कहने लगे वसीले का माना ये होता है बेहके फना। मौलाना मेरा ये चैलेंज था कि आप किसी किताब में से मुफस्सिर किसी से मुहद्दिस किसी से ये दिखाएं कि वसीले का ये माना होता है बेहके फना। अभी साहब इस बात को नोट कर लेना कि इसका ये माना होता है। आप ये कहते हैं कि तदलीस जो है वो कबूल कर ली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुने बस मुदल्लिस और इज़ा आला अन, जब मुदल्लिस जब कहे अन से रवायत है, ला युहतज्जु बिही, उसकी बात को माना ही नहीं जाएगा। इल्ला अन यस्बत सिमाहु, मगर जब तक कि उसका सिमा साबित नहीं हो जाता उसकी हदीस को कबूल ही नहीं किया जाएगा। इल्ला निश्चित सही है मिनल मुदल्लिसीन, लेकिन जो सही है मिनल मुदल्लिसीन आ रहे हैं वो महमूल है, किस पर, वो महमूल है सिमा पर। जहाँ सिमा पर महमूल हो उसकी बात को माना जाएगा, तो जहाँ सिमा पर महमूल नहीं वो जब तक के सिमा साबित नहीं होता उसकी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब आप कहते हैं जी वो सिका है, और वो सिका है सिकातुन मामून, और जिक्र किसका किया है, इब्न हिब्बान की सिकात और साहब हाकिम सिकातुन मामून। अब आप देखें इमाम हाकिम के कहते हैं, इमाम हाकिम ने एक आदमी को कहा, ये बात सुनने के काबिल है, इमाम हाकिम कहते हैं कि ये आदमी सिकातुन मामून, ये सिका आदमी है, लेकिन यही इमाम हाकिम ये बात कह रहे हैं कि वो इमाम सदूक उनके इमाम हाकिम इमाम है, लेकिन साहिब तसानीफ है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अहादीस अपनी मुस्तदरिक में कहते जिक्र करते हैं जो आंकित होती है उसको सही कह जाते हैं। एक मुतसहल आदमी की बात को उठाकर हमारे सामने पेश करना और कहना कि ये बात है, और ये पूछते हैं कि रोह को ज़ईफ किसने कहा है, इब्न अबी मौलाना किताब छुपा गए, उसने किताब नहीं दी और कहा मुझसे पूछा कि रोह को ज़ईफ किसने कहा है। मौलाना जाएगा देखें, सुनेंगे रोह को किसने कहा है ज़ईफ, रोह को किसने ज़ईफ कहा है, इब्न अबी। और अगर किताब मानते हैं, किताब हम आपको खुद दे देते हैं, ये निज़ारुल
नहीं थी। इसी तरीके से जो रवायत ये आपने पढ़ी है उस पर मैंने जरा जल्दी और जरा सुफियान सौरी को बड़ा इमाम कहने वालों कहा नहीं पल्ले को हानिस दुआ बहुत सही लोगों से रवायत करता था। कंडो कंडो और फिर मुदल्लिस का हुक्म सुनो। मुदल्लिस का हुक्म क्या है? ला जो सच्चो भी उसकी रवायत को कबूल ही नहीं किया जाएगा मगर जब तक के वो उसका खिलाफ साबित न हो जाए। इमाम नबी किताब हम छुपाने वाले नहीं। किताब ले लो किताब और इसमें से निकाल के दिखाओ। हमारा एक आपकी कुदरत पर मौजूद है। दो आदमियों पर एतराज किया। अगर जरूरत है इसको साफ करके दिखाएंगे। अगर जरूरत है तबलीग का हुक्म तबलीग कबूल ही नहीं की जाती किसी की जब तक कि वो दिमाग चला का करे। और फिर रवायत आपने जिक्र की उसके ज़ईफ़ होना उसके रावी का हमने साबित कर दिया। मौलाना मैं एक और बात कहता हूँ, इस रवायत को आपने बयान किया इस मुहद्दिस ने इसको सही कहा। मुहद्दिसीन की तस्दीक चलेगी कि नहीं ये भी शरायत में लिख कर दिया गया है। मुहद्दिसीन की तस्दीक दिखाए इसको कि इस रवायत को किसने सही कहा है। हम आप करते हैं जब आपके पास कोई दलील नहीं अल्लाह के फजल से हमारा अकीदा सही कहा। सल्ली अला रसूल करीम। भाई ये तो बयान किया कि मुदल्लिस है ये भी बयान कर दिया लेकिन जो सही हैन में वाक़ हो तो ये सही हैन का मरकज़ी रावी है। ये सही हैन का मरकज़ी रावी है। कहा कि मुदल्लिस की रवायत जान से होगी वो मकबूल नहीं होगी। लेकिन अगर मुदल्लिस का रावी जो है सही हैन का रावी हो तो कभी फिर ये बयान नहीं किया ये किस रावी ये किस दर्जे का मुदल्लिस है। और क्या हर रावी की यही जगह होगी? हर रावी की मुदल्लिस इमाम में लोग हमीद और लोग ये जो थे ये सब तो मानते रहे। हमारे जो है वो मुदल्लिस होने के बावजूद जनाबे वाली उसकी रवायत मानी जाती है और वो पहले दर्जे का मुदल्लिस। ये पहले एक दर्जे उन्होंने बयान किए। पहले दो दर्जे तबके जो हैं उन तबकों के मुदल्लिसीन जो है उनकी रवायत उनके साथ भी मकबूल है। उठाओ मौलाना आपने बयान किया था मुकदमा इब्न सल्लाह उसमें पूरा तबका जो है और इमाम इब्न हजर ने इमाम इब्न हजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुकदमा इब्न सल्लाह पर जो नकद लिखी है जो उनकी शरह लिखी है उसमें से निकाल लो। इमाम इब्न हजर ने इमाम सुफियान सौरी को पहले तबके का मुदल्लिस है कि कहा की रवायत उनके साथ भी काबिल कबूल होगी। और फिर क्या ये मौजूद से साबित हो जाती है। और कहा इब्न अब्दी ने कहा कि दुआ खाओ वो वही है किस दर्जे की जगह है इसको जगह किसने कहा है उस मुहद्दिस का नाम लो तो ये मुफस्सिर जगह है जो जगह है ये मुबहम जगह नहीं है। निकालो इसको और तुम्हें पता चलेगा कि ये जरा मुबहम है लिख के दिया जरा मुबहम काबिल कबूल नहीं होगी। अब भूल गए मुझे शरायत दिखा रहे थे मैंने इसको पेश किया कि ये सही रवायत है। अगर तक वही होना तो साबित कर देना। जी किसने कहा? मैं कहता हूँ जब सही है तो सभी सही कहेंगे ना। मैं भी सही कह रहा हूँ इसको सभी ने सही कहा। जिसने नकल किया उसको भी उसने भी इसको सही कहा। आपने क्यों नहीं बयान किया कि जनाब ये किस पर करा दिया? मैं जरा नहीं करना चाहता तो मौजूद साबित करो। लिख कहा था कि नहीं मौजूद साबित करूंगा। आज मैं गलत साबित ना करूं तो लिख के दूंगा कि आज तक मौजूद साबित मौजूद के लिए मेरा नाम है क्या क्या चीजें बयान की है वही बयान कर दें कि मौजूद होने के लिए दूध की शरायत क्या है। चलो आज मैं ये तुम्हें खुला चोरी करता हूँ। मैं नहीं कहता इजमा हो मैं नहीं कहता 10 आदमी कहें मैं कहता हूँ सिर्फ एक आदमी कहे कि मौजूद होने की ये शायद है और वो सारी की सारी शायद इसमें मौजूद है। और अगर वो मौजूद तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मानने के लिए आज भी तैयार हैं। आज मैं और फिलहाल बुखारी मुस्लिम के दायर अभी मैं पेश करने से लेकिन मैंने कहा कि आज तो मसला ही खत्म हो गया। आज तो लिख के देना ही पड़ेगा। ये मौजूद साबित करो नहीं करोगे तो लिख के देना पड़ेगा। आज शाहसार ये पता चल जाएगा कि जो मुंह से जुबान से बात निकलती है उसका पास कौन करता है उसका कागज से करा देता है। कहा था बड़े दावे से कहा था मैं इसको मौजूद साबित करूंगा मैंने गलत साबित करूंगा। मैंने अपना भी टाइम दिया कि इसको साबित करो। फिर कभी इधर कभी उधर कभी वो कहा कभी ये कहा फलां ने कहा इसमें तो बेहद के लफ्ज़ हैं कि नहीं इसमें तो है कि नहीं। और अभी मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह के आगे भी दिखाता लेकिन अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह ने करम किया मसला खत्म होने को आ गया इसको मौजूद साबित करो। और जो इमाम इब्न अब्दी की जगह है क्या वो मुफस्सिर है क्या वो मुबहम नहीं है यही बयान कर दो कि ये जरा मुफस्सिर है ये जरा गैर मुबहम है। चलो मैं ये भी बात मानने को तैयार हूँ कि मुहद्दिस बयान तो करे ना जरा उसको कहते हैं मुफस्सिर जिसने को बयान किया है क्यों मुहद्दिस जो है मुहद्दिस जो है क्यों नहीं है इसमें असल असूल बयान करो मौलाना साहब। आज ये सारे के सारे असूल बयान करने पड़ेंगे। ये सिर्फ सुफियान सौरी की तकलीफ और सही अहम का रावी इमाम बुखारी के उस्तादों का उस्ताद ये तो तुम पूरी आदमी बुखारी को आज छोड़ रहे हो। मैं कह रहा था इमाम पता नहीं क्या वलीलों को कैसे छोड़ दिया शायद को कैसे मुझे पता है तो इमाम बुखारी को भी छोड़ दिया इमाम मुस्लिम को भी छोड़ दिया सुफियान सौरी को भी छोड़ दिया अमीर और मोमिनीन फिल हदीस किसका लकब है
सुफियान थौरी का लक़ब है। सुफियान थौरी को लोग कहते हैं ये हदीस का अमीर मोमिनीन है। आज तो कहते हैं मुतलक़न उसकी रिवायत काबिल रद्द कराने से कहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितना बड़े सिरत है इमाम सुफियान थौरी पर। सही है का कहा है कि सही है में से जो हों उनकी रिवायत के साथ भी कबूल कर ली जाएगी। और रहो तो एक नहीं सिर्फ मौलाना देख के वो भी जरा मुबहम और कह रहे हैं कि हदीस बहुत होगी बहुत सुभान अल्लाह कहते रसूल। आज पता चला कि ना पहले हदीस है रसूल हदीस का मतलब इधर पता नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ अगर रसूल हदीस सीखने हो तो माने वाले सुन्नत के कदम सुन लो तुम्हें पता चल जाएगा रसूल हदीस की है क्या है। इन्होंने रौह की जो साहब बयान की है इब्ने हिब्बान से और इमाम हाकिम से बयान की है। दो आदमियों से इन्होंने साबित किया है कि वो सिका है। मैंने बतलाया कि इमाम हाकिम वो है जो साबित गिर गई हदीसें मौजू हदीसें गिर गई हदीसें उनको भी सही कहते हैं कि ऐसा आदमी है इमाम हाकिम। इब्ने हिब्बान मुतसाहिल है जनाब। इब्ने हिब्बान मुहद्दिसीन के नजदीक मुतसाहिल है। इसलिए आप पहले सकाहत साबित करें कि ये सिका है फिर हमसे मांगे कि इसकी जरा कि ये कौन है फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मकाम है। अब मौलाना पता नहीं क्या हुआ। मौलाना को भी कहते थे कि इसीलिए कहते थे कि 1 घंटा टाइम रख ले ज्यादा न रखे क्योंकि पता है कि मौलाना के पास दलाइल कितने हैं। कहते हैं बुखारी मुस्लिम में से बड़े दलीलें पेश करनी थी। कहते हैं मुकदमा इब्ने सलाम में इब्ने हजर ने फरमाया है और ये पढ़ी है किताब जो अपनी मुतालबा कर रही है कि मुकदमा इब्ने सलाम में क्या खूब फरमाया है गालिब ने बांगे दरा में तो ईराना आए सदा करते रहे मियाँ कुछ रहो हम दुआ करते रहे। मौलाना का हाल अब ये हो गया है कि मुकदमा इब्ने सलाम पढ़ रहे हैं और इब्ने हजर ने फरमाया है। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि सुफियान थौरी पहले दर्जे का है। मौलाना जरा निकाले ना दलील ताकि हम भी जरा देख लें कि सुफियान थौरी पहले दर्जे का है। दूसरी बात नहीं है। तीसरी बात ये मौलाना कहते हैं ये जरह मुबहम नहीं है। फिर वही कहते हैं ये जरह मुबहम है। अब मौलाना की मैं बात किसका जवाब दूं। एक जगह कहते हैं ये जरह मुबहम नहीं है फिर कहते हैं ये जरह मुबहम है। अब मौलाना मैं किसका जवाब दूं मुझे बताए तो सही। फिर कहते हैं मौलाना कि ये मुदल्लिस है। अब मौलाना मैं किसका जवाब दूं मुझे बताए तो सही। फिर कहते हैं मौलाना कि ये मुदल्लिस किस दर्जे के थे। मौलाना मैंने आपको बता दिया काना युदल्लिसु अनी ज़ुअफ़ा। मैंने तो गाड़ियों वाली किताब पर क्या आपको सुनाई है ज़ुअफ़ा। अगर नहीं सुनता दोबारा सुन ले। ज़ईफ़ लोगों से तदलीस करने वाला और मैंने हुक्म दिखाया कि मुदल्लिस की बात मानी ही नहीं जाएगी। ला युहतज्जु बिही इसको दलील के तौर पर पेश ही नहीं किया जाएगा। ये है शायद जो आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि रवायत सही रावी सिका। मौलाना जी तो देखने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर कहते हैं हमीद तो हमीद कहाँ से आया है। वो तो पाकिस्तान का हमीद था। हमीद था उसको दिया मैं। अच्छा हुमैद बोल दिया था। अच्छा जो हुमैद बोला था मौलाना वो हुमैद वाली रवायत तो हमने पेश ही नहीं की है। उस पर बैठ के मौलाना चैलेंज करता हूँ चैलेंज। इस शरायत को फाड़ो इस शरायत को तदलील वाले लोगों की। और जिस रावी को किसी ने सीखा ही नहीं कहा मुतसाहिलीन ने सीखा कहा। मुतसाहिलीन ने इधर सुन ले इसका जवाब देना है आपने। आपकी रवायत तब सही होगी जब रावी सिका होंगे और रावी सिका कहने वाले आइम्मा जरह तादील वाले होंगे। जो हाकिम साबित मौजूद आयात को सही कहता है उसकी सकाहत लेके आए हैं कि इसको सिका कह रहा है और इब्ने अबी मुअतदिल है और आपका मुतसाहिल है। मुकाबला यहाँ करें। आपकी रवायत कंदम है। इब्ने अबी मुअतदिल इब्ने
नसली अला रसूलिल करीम, नसली अला रसूलिल करीम। दोस्तों पता चल गया कि ये हदीस मौजू नहीं, कहा ये अंधेरा है। बुखारी की कितनी हदीसें अंधेरे में चली गई। आज और भी सही है कि हाथ हाथ धो बैठे या कहते कि ये इमाम बुखारी के उस्तादों का उस्ताद नहीं है, ये नहीं है, वही है। मैं उसी बात को कह रहा था, जब दे नई बात नहीं कर रहा, मैं कोई नई दलील नहीं दे रहा। कहा कि मैंने कहा इब्ने हजर ने इतनी शरह में कहा, कहते इब्ने सलाह इब्ने हजर ने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई सुन ले, नहीं चलो छोड़े और सब सुना जाएगा। आज अपने लोगों ने लिखवाना है, मौजूद साबित नहीं है। नहीं तो अगर ये कहा कि हाकिम ने सही मुस्तदरक ने कहीं को कह दिया, उसको किसने कहा मौजू है? उनको बहरी ने कह दिया मौजू है, इसको किसने कहा मौजू है? बताओ पूरी दुनिया में कोई इमाम जिसने इस हदीस पर मौजू कहा हो। और फिर कहा कि मैंने कहा अजीब ने अभी वो मौत दे लो ना अपनी जगह, पर उसकी जगह तो हो ना, जरा मुफस्सर होनी चाहिए। कारी मुब है मैं गैर हूँ, वही अगर जुबान से मुबम निकल गया तो उससे पकड़ कर रसूल की बात करो, आज जलाल की बात करो। वो जरा मुबहम है, गैर मुफस्सर है, वो फस्सर नहीं है। मौलाना आज आपने बयान नहीं किया, मैं दोस्तों से मुतालबा करता हूँ अभी लिखाएं या इसको मौजू साबित करें या इस बयान लिख के दें। मैं वहाबियत से तायब होता हूँ, मैं गलत नजर से तायब होता हूँ। कहा कि वो भी अंधेरा है, वो तो जुल्मत है, वो सही है ना, आज जुल्मत में चली गई। बुखारी मुस्लिम कहते हैं इसकी दलील पेश करो, उठाओ मौलाना सही है। बिल इत्तेफाक मुहद्दिसीन ने लिखा जो सही है कि मुदल्लिसीन है, वो तबका उम्मा के मुहद्दिसीन हैं, उनकी रिवायत बगैर जरा और कदा के कबूल आप खुद बयान किया कि मुदल्लिस की राय से कबूल होगी, लेकिन सही है कि रावी जो ये खुद बयान किया। जबान का जो है एक ऐसी जबान का जो बार बार ऐसी बातें करती है और उस पर फिर पूरी नहीं उतरती कि अगर मैं इसको घर में साबित ना करूँ, अगर मैं इसको घर पर साबित ना करूँ तो मैं लिख के दूंगा, लिख के देना पड़ेगा। या एक मुहद्दिस से बताओ ये हदीस मौजूद है। एक पूरी दुनिया में कहा कि फिर तुम पहले तदील पेश करो। मौलाना ये उसूल नहीं पड़ा कि तदील के लिए किसी का भी शिका कहना जरूरी नहीं है, लेकिन जरा के लिए जरा करनी जरूरी है। तदील के लिए यही जरूरी है कि आदमी उसको बुरा नहीं कहता, वो नेक है तो आदमी उससे रावी रिवायत कर ले, वो मारूफ हो जाता है, वो शिका हो जाता है। जब तक उसको कोई रावी सही न कहे, बड़ा मुकद्दर न कहे, उस वक्त तक वो रावी शिका रहेगा, शिका साबित होगा। कहते शिका साबित करो, ये उसूल ही गलत है। किसी को शिका साबित करना तब होता है उस पर जरा मुफस्सर साबित हो जाए। आपने जरा मुफस्सर साबित नहीं की और कहते हैं इब्ने अती जो है ना जी, वो तो जनाबे वाली मोत दिल है। सुनिए काल अकाल इमाम ज़हबी जब तो फिर काल बोल नहीं सकते, बोल मन तो करना चाहिए बेहदना सही बोलो कान में रजाल सही है ने कहा अगर सही है के भी रावी है। थोड़ी सी बात है तो इब्ने अती उन पर भी जरा कर देता। उठा ले आज बुखारी मुस्लिम से हाथ उठा ले दाओ भाई, यहाँ इब्ने अती असर भी पड़ी है, वक्त नहीं है मौलाना, 2 मिनट में सुन ले मेरी गुजारिश। आज पता चल जाएगा कि अपनी जुबान पे कौन कायम रहता है। आज मौजू साबित कह दो कि ये हदीस मौजू है, उसने कहा है तो हम नाजा हारे, लेकिन चूंकि आपने ये साबित नहीं किया लिहाजा लिख के देना पड़ेगा कि वो मौजू नहीं हुई साबित, किसी मदद ने उसको मौजू नहीं है। मौजू तो दूर की बात है, आपने तो उसको दोस्तों मुनकर भी साबित नहीं किया, आपने तो उसको ज़ईद भी साबित नहीं किया, आपने तो उसको जनाबे वाली अदना सी ये है ना यानी दोस्त की अदना सी बात वो भी कर। मौजू तो सबसे आखिर में आती है, आखिरी दर्जा मौजू का है। और मौजू हदीस कहते हैं जो पल्ले से कर ली जाए, अपने आप गाड़ ली जाए, अपने आप बना ली जाए। जरा बताओ ना कौन रावी उसने कज़ाब ने खुद बनाई है। जरा क़यामत के दिन तैयार हो जो मुहद्दिसीन को कज़ाब कहने वालों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजू कहने वालों, हम पहले कहते थे क्यों नहीं है, वही बात है। नहीं दलील में कौन सी दलील है? वही बात है कि ये रावी मुदल्लिस, ये रावी जो है, ये रवायत जो है सिका है, सही है। रावी सबसे बात रवायत सही हमें साबित कर दिया। तुमने इब्ने अब्दी का एक और पेश किया, इब्ने अब्दी सही अंक रावियों को भी ज़ईफ़ कह देता है। इब्ने अब्दी वो रावी है, इब्ने अब्दी वो मुसन्निफ़ है जिसने सही अंक रावी को भी ज़ईफ़ कहा, लेकिन यहाँ सिर्फ ज़ईफ़ है। और चलो मैं इब्ने अब्दी की भी बात मानता, वो बगैर तो बयान करते कि वो ज़ईफ़ है, वो झूठ बोलता है, वो जनाबे वाले का अफसर साहब है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطیب نے اہل سنت و جماعت کی تقریر و دلائل سنے اور اہل سنت کے مد مقابل کے بھی دلائل سنے. حضور اس نتیجے پر پہنچا ہے اہل سنت و جماعت کا مناظر کامیاب رہا. لہٰذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ فتح اہل سنت کی ہے. کل فقیر ابو سعید محمد عبداللطیف میرے میں چونکہ اہل حدیث کی طرف سے جو سالف تھے ان کو ہم نے کہا کہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے جو بھی فیصلہ ہے دے دو, چاہے یہی لکھ دو, چاہے حدیث جیت گئے ہیں. لیکن وہ اس طریقے سے لکھنے سے انکار کرتا رہا. بعد میں وہ گھر چلے گئے یا نہ جانے کہاں جا کر انہوں نے ہمیں لکھ کے وہ فیصلہ جو بھیجا تھا نامکمل فیصلہ وہ انہوں نے جو بھیجا ہم آپ کو پڑھ کے وہ سنا دیتے ہیں. فیصلہ انہوں نے نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ چونکہ ان کو پتا تھا کہ ابھی ہار گئے ہیں, لہٰذا جھوٹ نہ ہو جائے. انہوں نے نامکمل جو فیصلہ لکھ کے بھیجا وہ پڑھ کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, خود فیصلہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مولانا طالب الرحمان اور مولانا عباس رضوی کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مسمہ حافظ محمد عمران بطور ثالث موجود تھا. اس گفتگو میں مولانا عباس رضوی اپنے دعویٰ وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہے کہ حق میں گفتگو کی شرائط کے مطابق دلائل نہیں دے سکے. محمد عمران اہل حدیث. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا امۃ بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محترم سامعین, آج کا جو مناظرہ ہوا ہے اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور اپنا فیصلہ جسے کہتے ہیں کہ بھائی ریکارڈ کرا رہا ہوں, تو آپ جسے کہتے ہیں کہ سماعت فرما لیں. اختر پیرجی سید مشتاق علی شاہ ہمشی دیوبندی اس مناظرے میں جو مورخہ 10/10/99 بروز اتوار مابین اہل سنت و جماعت ہمشی بریلوی اور اہل حدیث منعقد ہوا. میں بطور نمائندہ علماء دیوبند شامل ہوا. فریقین کے مشورے کے ساتھ یہ طے پایا کہ میں صرف یہ بیان کروں گا کہ کون سا مناظر اپنے موضوع کے مطابق دلائل دیتا ہے اور کون سا مناظر ترجمہ غلط کرتا ہے. آخر نے پورا مناظرہ سنا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ مناظر اہل سنت محمد عباس رضوی نے دلائل شرائط کے اور موضوع کے مطابق بیان کیے ہیں اور مناظر اہل حدیث نے ان کے مقابلے میں نہ تو اپنی طرف سے کوئی دلیل دی ہے اور نہ ہی صحیح طور پر ان کے دلائل کا رد کر سکا, جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے اس مناظرے میں فتح ہوئی ہے. والسلام مشتاق علی.